بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے یوٹیوب چینل خانقاہ قادریہ عبدالیہ پر آپ کا استقبال ہے۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ ہماری ریگولر ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں اور آپ کے علم میں اضافہ ہوتا رہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. وقال رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم: اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے: كنت نبيا وآدم بين الماء والتين، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الامیر المکین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم سامعین، کافی دیر سے آپ حضرات محفل میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں تشریف فرما ہیں، اور آج کے اس پربہار مسرت دن میں اپنے نامہ اعمال میں نیکیوں کا ذخیرہ اکٹھا کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو شان، جو مقام، جو عظمت، جو رفعت بیان فرمائی ہے، اس پہ کچھ لفظ سے قبل ضروری سمجھتا ہوں کہ آج کی اس مقدس رات میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں جی لگا کر درود پاک پڑھیں: اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم۔ سارے جہاں میں کوئی بھی ثانی مصطفیٰ نہیں، سارے جہاں میں کوئی بھی ثانی مصطفیٰ نہیں، کوئی بھی مثل مصطفیٰ ہوگا نہیں، ہوا نہیں، کوئی بھی مثل مصطفیٰ ہوگا نہیں، ہوا نہیں۔ اور ان کو خدائے پاک نے مالک کل بنا دیا، ان کو خدائے پاک نے مالک کل بنا دیا۔ ساری خدائی ان کی ہے، قبضے میں ان کے کیا نہیں، ساری خدائی ان کی ہے، قبضے میں ان کے کیا نہیں۔ اور یہ شعر دیکھیں، عقیدت کا شعر ہے اور مبنی پر حقیقت بھی ہے کہ رب کی رضا جو چاہو تو راضی کرو رسول کو۔ آج بہت سارے لوگ ہیں صرف اللہ اللہ کرنے کا درس دیتے ہیں، اللہ اللہ کرنے سے اللہ نہیں ملتا جب تک رسول اللہ کی نعرے کی صدائیں بلند نہ کر دیا۔ ان کو خدائے پاک نے مالک کل بنا دیا، ساری خدائی ان کی ہے، قبضے میں ان کے کیا نہیں۔ اور رب کی رضا جو چاہو تو راضی کرو رسول کو، رب کی رضا جو چاہو تو راضی کرو رسول کو۔ ہوگا نبی کو چھوڑ کر راضی کبھی خدا نہیں، ہوگا نبی کو چھوڑ کر راضی کبھی خدا نہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، پڑھیں درود پاک: اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم۔ کافی دیر سے آپ حضرات بیٹھے ہوئے ہیں۔ جب میں یہاں پر آیا تھا تقریباً غالباً 9 یا 9:30 ہو رہا تھا، اس وقت اسٹیج بھی بھرا ہوا تھا، لیکن میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اسٹیج والے حضرات تو ماشاءاللہ جگہ بدل بھی لے رہے ہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے بھی جا رہے ہیں، لیکن ہماری عوام عشق رسول سینے میں لیے ہوئے ایک جگہ بیٹھی ہے تو بیٹھی ہے، لہٰذا میں بہت زیادہ دیر تک آپ لوگوں کو نہیں بیٹھا لوں گا، بس
پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد کا یہ مبارک دن ہے، اور آپ کی آمد پر جو عشاق رسول آپ کے نام پر اپنا تن من دھن قربان کرنے کا جو جذبہ رکھتے ہیں، اس پہ بہت سارے لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے۔ لہذا اس اعتراض کو ختم کرنے کے لیے کچھ باتیں پیش کروں گا میں، اور وہ باتیں کسی مولوی صاحب کی نہیں ہے، کسی عالم صاحب کی نہیں ہے، کسی مفتی صاحب کی نہیں ہے، بلکہ وہ باتیں، وہ بیان ان کا بیان ہے جن کا انتخاب، جن کا سلیکشن، جن کا چناؤ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت کہاں ہوئی ہے؟ مکہ المکرمہ میں۔ مکہ المکرمہ کو وہ سعادت حاصل ہے کہ پوری روئے زمین، پوری دنیا پر، پورے ورلڈ کا آپ گشت کر لیں، چکر لگا لیں، تو آپ کو قرآن کے نقطۂ نظر سے، دینی کتابوں سے یہ پتہ چلے گا کہ سب سے افضل و اعلیٰ، برتر و بالا اگر کوئی شہر ہے تو وہ شہر مکہ ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو مبعوث فرمانے کے لیے، اپنے محبوب کی ولادت فرمانے کے لیے، اپنے محبوب کو ہماری رہنمائی کے لیے دنیا میں بھیجنے کو جس شہر کا انتخاب فرمایا ہے، وہ شہر کوئی معمولی شہر نہیں، بلکہ پوری دنیا میں ٹاپ کلاس کا شہر مانا جاتا ہے، جس کو سب سے افضلیت اور اعلیٰ مقام حاصل ہے، وہ مکہ المکرمہ ہے۔ اب مکہ المکرمہ میں کسی ایسے ویسے کے گھر میں ولادت نہیں ہو رہی ہے، یوں تو وہاں کئی قبائل تھے، لیکن ان تمام قبائل میں سب سے افضل و اعلیٰ جو قبیلہ تھا وہ قبیلہ قریش تھا۔ پھر اس قریش میں سے بھی سب سے زیادہ افضل و اعلیٰ جو تھے وہ بنو ہاشم تھے۔ بنو ہاشم میں سب سے افضل و اعلیٰ حضرت عبد المطلب کے خاندان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اعزاز عطا فرمایا کہ آپ کے پوتہ محترم، آپ کے پوتہ محترم آپ کے بیٹے محترم حضرت عبداللہ کو کہ نور پیشانی میں نور محمدی کو معجزن فرما دیا ہے۔ وہاں سے پھر یہ سلیکشن شروع ہو گیا کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے والد بننے کا شرف جسے حاصل ہوگا وہ کسی عام شخص کو نہیں ہوگا، کسی غیر شخص کو نہیں ہوگا، بلکہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے والد بننے کا جسے شرف حاصل ہوگا وہ شہر کے اعتبار سے بھی افضل و اعلیٰ ہوگا، خاندان کے اعتبار سے بھی افضل و اعلیٰ ہوگا، پریوار کے اعتبار سے بھی وہ افضل و اعلیٰ ہوگا۔ اور اسی طریقے سے جنہیں ماں بننے کا شرف حاصل ہے، بی بی آمنہ جو اپنے وقت کی عابدہ زاہدہ ہے، جو اپنے وقت کی عالمہ فاضلہ ہے، انہیں یہ شرف حاصل ہے کہ آپ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ ہے۔ دوستان محترم، تو رب نے جو انتخاب فرمایا ہے وہ انتخاب اپنے آپ میں ایک اہمیت کا حامل ہے۔ تو اسی لیے میں نے عرض کیا کہ جو میں باتیں بتاؤں گا وہ آپ کو کسی مولوی صاحب کی کہی ہو نہیں، کسی مولانا صاحب کی کہی ہو نہیں، کسی مفتی صاحب کی کہی ہو نہیں، بلکہ ایسی عظیم و مرتبہ ہستی کی یہ باتیں ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلیکشن جن کا کیا ہے، جن کا انتخاب کیا ہے، وہ ہے بی بی آمنہ۔ آئیے چلتے ہیں بی بی آمنہ کی بارگاہ میں اور عرض گزار ہوتے ہیں، اے بی بی آمنہ ذرا مجھے یہ بتائے کہ دنیا میں جب بھی بچہ پیٹ میں آیا ہے تو ماں کی حالت بڑی غیر ہو جاتی ہے، ماں جب پریگننٹ ہوتی ہے، ماں جب حاملہ ہوتی ہے تو اس کی حالت بڑی عجیب و غریب ہو جاتی ہے، کمر میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے، پیٹ میں تکلیف رہا کرتی ہے، کھانا اچھا نہیں لگا کرتا ہے، اور اس کے بعد اسے متلیاں آیا کرتی ہے، وومیٹنگ ہوا کرتی ہے، اور اسے چکر بھی محسوس ہوا کرتا ہے۔ اے بی بی آمنہ، اے کل جہان کے سردار کی ماں، ذرا آپ بتائیں کہ کیا آپ کو بھی ان مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے؟ تو بی بی آمنہ ارشاد فرماتی ہے، نہیں نہیں اے دنیا کے لوگوں، مجھے اس قسم کی کسی تکلیف کا سامنا نہ کرنے کی ضرورت پڑی ہے، مجھے کسی قسم کا درد محسوس نہیں ہوا ہے، مجھے کسی قسم کی وومیٹنگ نہیں آئی ہے، مجھے کسی قسم کا کھانے میں دشواریاں محسوس نہیں ہوئی ہے۔ اے میرے عزیزوں، یہ جان لو بھلا مجھے دشواریاں ہو بھی کیسے سکتی تھی؟ جس ہستی کی آمد ہونے والی ہے، جس ہستی کو اللہ نے میرے
शिकम में रखा है। जिस हस्ती की मैं वालदा बनने वाली हूँ, वो हस्ती तो ऐसी हस्ती है जो आने के बाद पूरी दुनिया से जुल्मत को मिटा देने वाली है, दुख दर्द मसाइब व आलाम को खत्म कर देने वाली है। भला वो हस्ती जब मेरे पेट में आएगी तो भला किस चीज की ये हस्ती है कि वो मुझे पस्ती की तरफ ले जाए, वो मुझे परेशानियों की तरफ ले जाए, वो मुझे दर्द की तरफ ले जाए। बीबी आमना इरशाद फरमाती है कि जब मेरा लख्ते जिगर मेरे पेट में आया है तो मुझे किसी किस्म की थकान, किसी किस्म की परेशानियों का एहसास नहीं हुआ। हत्ता कि हमारे घरों में जो खाने और पीने की परेशानियां रहा करती थी, अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे लख्ते जिगर के सदक़े में मेरे घरों में फरावानियां अता कर दी है। खैर और बरकत का नुज़ूल होने लगा है। और क्यों ना हो कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जात वो जात है। आज बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो ये कह देते हैं, साथ ही साथ अकीदा की भी कुछ बात होती चले। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये कह देते हैं बड़ी आसानी से कि अरे भाई तुम तो अपने नबी की इतनी तारीफ करते हो, इतनी तारीफ करते हो कि अल्लाह के बराबर ले जाके खड़ा कर देते हो और कभी कभी अल्लाह से भी बढ़ा दिया करते हो। ऐ मेरे अजीजों, तुमने कुरान पढ़ा हुआ है, कुरान में खुद अल्लाह तबारक व तआला ने, आप सब लोग सूरह फातिहा से वाकिफ है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ उस अल्लाह के लिए जो सारे जहान का पालने वाला है। और जहान से रिलेटेड किताबों में आता है कि 18,000 अल्लाह तबारक व तआला ने कमोबेश आलम पैदा फरमाए हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला जिन 18,000 आलम का पालनहार है, उसी अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब की शान में ये इरशाद फरमाया है कि वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। इधर भी आलमीन है, उधर भी आलमीन है। तो जब रब से नबी जुदा नहीं है, नबी से रब जुदा नहीं है, तो फिर हम और तुम कौन होते हैं नबी को अल्लाह से जुदा करने वाले? अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जिस सैगा का इस्तेमाल अल्लाह अपनी जात के लिए कर रहा है, उसी सैगा के साथ अपने महबूब का भी तारुफ फरमा रहा है। दोस्ताने मोहतरम, तो पता ये चला कि नबी मुकर्रम अल्लाह तबारक व तआला जिस जहान का पालनहार है, उस जहान के लिए नबी रहमत बनकर आए हैं। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ऐ महबूब, हमने आपको कुल जहान के लिए रहमत बनाकर भेजा है। दोस्ताने मोहतरम, जब वो रहमत का खजीना हजरत बीबी आमना के पेट में आ गया तो भला क्यों ना रहमतों बरकतों का नुज़ूल हो जाता। और तो आगे चलते हैं, आगे चलने पर हमें और आपको ये पता चलेगा कि अल्लाह तबारक व तआला ने प्यारे महबूब की आमद की खुशी में कैसी रहमतों का नुज़ूल फरमाया है, कैसी बरकतों का नुज़ूल फरमाया है, कैसी इनायत फरमाई है, अनकाउंटेबल इनायत की है। अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत बीबी आमना इरशाद फरमाती है, ये छोड़ो, ये जो बल्ब हमारे सरों पे लगे हुए हैं, ये हमने किस लिए लगाया है? इसीलिए लगाया है कि प्यारे आका की आमद हुई है। प्यारे आका की आमद की खुशी में हमने ये बल्ब लगाया हुआ है। कितना खूबसूरत मालूम हो रहा है। उम्मीद करती है कि आप लोगों को भी अच्छा लग रहा होगा। दोस्ताने मोहतरम, आपको मालूम होना चाहिए कि अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दौर में, प्यारे आका की विलादत के वक्त इतना ज्यादा साइंस डेवलप नहीं था, इतना ज्यादा तरक्की याफ्ता दौर नहीं था। तो जो हमने खूबसूरती के लिए बल्ब लगाया है, तो आप जानते हैं ये बात किसी मुफ्ती की नहीं है, ये बात किसी आलिम की नहीं है, बल्कि ये बात खुद प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारका से ये अल्फाज निकले हैं कि मेरे महबूब, मेरे अल्लाह के महबूब, मेरे लख्ते जिगर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब विलादत का वक्त करीब आया तो मैंने आसमान के सितारों को देखा कि वो इतने नीचे आ गए, इतने नीचे आ गए, ऐसा लग रहा था कि जैसे अब मेरे छत पे वो उतर आएंगे। दोस्ताने मोहतरम, हमने प्यारे आका की आमद की खुशी में ये बल्ब और कुबकुबे लगाए हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने भी मेरे रसूल की आमद की खुशी में सितारों को इस कदर जगमगा दिया था कि बीबी आमना के छत के करीब वो पहुंच चुके थे। दोस्ताने मोहतरम, बात यहीं पे खत्म नहीं होती है। आज बहुत सारे लोग जुलूस और जलसे पर भी एतराज करते हैं। मैं जुलूस और जलसे की भी जो बात करूंगा वो किसी मुफ्ती साहब और आलिम साहब की बात नहीं करूंगा, बल्कि कुल जहां, कुल कायनात के सरदार की वालदा की बात करूंगा। आइए बीबी आमना से अर्ज करते हैं, ऐ बीबी आमना, आप ही फरमा दीजिए, हम ये जो जुलूस निकाला करते हैं, क्या हम ये शिर्क को बिदअत करते हैं? ऐ बीबी आमना, आप ही बता दीजिए, हम ये जो छतों पे झंडे लगाते हैं, क्या हम ये शिर्क को बिदअत करते हैं?
हैं। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, बीबी आमना हमें और आपको ये बताती हुई नजर आएंगी, नहीं ये शिर्क को बिदअत नहीं है, बल्कि ये मलाइका मुकर्रबीन की सुन्नत है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, बीबी आमना खुद इरशाद फरमाती है कि जब मेरे बेटे मेरे लख्ते जिगर की तवल्लुद का वक्त करीब हुआ, विलादत का वक्त करीब हुआ, डिलीवरी का वक्त करीब हुआ, तो मैंने क्या देखा है कि बहुत सारे फरिश्तों का आस्थान है, हुजूम है, बहुत सारे फरिश्तों की भीड़ लगी हुई है, और उन फरिश्तों के दरमियान एक हसीन व जमील फरिश्ता, एक निहायत ही खूबसूरत फरिश्ता खड़ा हुआ है। मेरे दिल ने ये गवाही दी, ये कोई मामूली फरिश्ता नहीं है, ये कोई आरा फरिश्ता नहीं है, ये कोई आम फरिश्ता नहीं है, बल्कि ये मलकुल मलाइक है, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, और ये फरिश्ते कर क्या रहे थे वहां पर आकर, बीबी आमना के दरे दौलत के किनारे आकर क्या कर रहे थे? यही कह रहे थे। शायर ने किस खूबसूरत अंदाज में कहा है, फरिश्तों की सलामी देने वाली फौज गाती थी, फरिश्तों की सलामी देने वाली फौज गाती थी, जनाब आमना सुनती थी, ये आवाज आती थी, सलाम है जिल्ल रहमानी, सलाम है नूर अस्तानी, तेरा नक्शे कदम है जिंदगी की लौह पेशानी। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, फरिश्तों का हुजूम है, फरिश्ते अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह की सदाएं बुलंद कर रहे हैं, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह की सदाएं बुलंद कर रहे हैं, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह की सदाएं बुलंद कर रहे हैं। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, तो यहाँ से हमें ये पता चला कि ये जुलूस निकालना किसी आम मौलवी की सुन्नत नहीं है, बल्कि मलकुल मलाइका फरिश्तों के सरदार जिब्राइल अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, और जुलूस में हाजिर होना यह फरिश्तों की सुन्नत है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, आगे बढ़ते हैं। बीबी आमना इरशाद फरमाती है कि मैंने जिब्राइल अलैहिस्सलाम के हाथ में 3 झंडा देखा। एक झंडा आपने बैतुल मुक़द्दस पे नस्ब किया है, दूसरा झंडा खाना काबा पे नस्ब किया है, तीसरा झंडा हमारे छत पे नस्ब किया है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, तो हमें किसी मुफ्ती से पूछने की जरूरत नहीं है, किसी आलिम से पूछने की जरूरत नहीं है, बल्कि बीबी आमना से हमें ये पता चल गया, बीबी आमना से हमें ये मालूम हो गया कि नबी की आमद का जब दिन करीब आ जाए, नबी की आमद का जब 12वीं का चांद आसमान में चमक जाए, तो हमें क्या करना है? अपने घरों में झंडे लगा देना है, अपने पास जितनी इस्तिताअत हो, कैपेसिटी हो, तुम्हें और लाइट लगा देना है, ताकि ये इजहार हो सके कि मेरे नबी की आमद का ये महीना आ गया है, मेरे रसूल की आमद का ये महीना आ गया है। अरे आप बोलेंगे भाई ये सब क्यों करने की जरूरत है? तो आइए ये भी हम बीबी आमना से पूछते हैं। किताबों से पता चलता है कि प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत से कबल जन्नत, आप सब लोग जब जन्नत का नाम आएगा तो सब लोग ये इमेजिन करेंगे, तसव्वुर करेंगे कि जन्नत का मतलब ऑलरेडी डेकोरेटेड, पहले से ही वो सजी सजाई है, और ये सब लोग जानते हैं कि जन्नत बिल्कुल दुल्हन की तरह सजी सजाई है। दुनिया को तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता, जितनी ज्यादा वहां आराम व आसाइश है, जितनी ज्यादा वहां फरावानी है, जितनी ज्यादा वहां फैसिलिटीज है, दुनिया उसके आगे कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर भी किताबों से ये पता चलता है कि प्यारे आका की विलादत के दिन जन्नत को सजाया और संवारा गया था। दोस्ताने मोहतरम, जब जन्नत जो ऑलरेडी डेकोरेटेड है उसे सजाया और संवारा जा रहा है, किस लिए? कि मेरे महबूब की आमद होने वाली है। तो जब अब यहाँ से एक सवाल ये भी उठता है, बास लोग ये भी कह सकते हैं कि अरे भाई विलादत मक्के में हुई है तो तुम सासाराम में क्या करोगे सजा के? तो विलादत मक्के में हुई है तो जन्नत क्यों सजाई जा रही है? लिहाजा विलादत मक्के में हुई है तो हम जो है कि अपना घर भी सजाएंगे, क्योंकि नबी की आमद से घर घर में उजाला है। दोस्ताने मोहतरम, तो ये तमाम बातें इस पर हम सख्ती से अमल पैरा हो जाए और अपनी आने वाली नस्लों को भी ये बताएं। बाज़ हज़रात ऐसे भी होते हैं जिन्हें ये लाइट और डेकोरेशन से प्रॉब्लम होती है, कहते हैं कि ये सब इस्लाम में कहाँ लिखा हुआ है, ये इस्लाम की तालीमात में से नहीं है। मेरे अजीजों, इस्लाम की तालीमात उस वक्त याद नहीं आती है जब तुम अपनी बेटी की शादी के लिए कीमती से कीमती मैरिज हॉल बुक कर रहे होते हो, जब तुम अपने बेटे की शादी के लिए अच्छे से अच्छे खाने पकवा के और उसको खिलाते नहीं हो, बल्कि कई कई प्लेटें बेकार चली जाती हैं, खाना खराब होता है, उस वक्त तुम्हें
शरीयत मोहम्मदिया याद नहीं आती है कि तुम अपने मेहमानों को कहो कि भाई साहब प्लेट चाट के खाइए, मुझे भी ये शर्त हासिल है बारातों में जाने का। मैंने देखा है कितने खाने बर्बाद होते हैं, उस वक्त किसी की जबान से ये नहीं निकलता कि भाई ये रसूल की सुन्नत के खिलाफ है, ये इस्लाम की तालीम के खिलाफ है। लेकिन जहां हम और आप प्यारे नबी का जश्न मनाने के लिए बैठ जाएं, फिर देखिए कैसे कैसे मुफ्ती पैदा हो जाते हैं। जैसे बरसात में मेंढक और खतिंगे पैदा हो जाते हैं, वैसे ही ऐसे माहौल में ऐसे मौके पर मुफ्ती भी पैदा हो जाते हैं। अल्लाह ऐसे मुफ्त के मुफ्तियों से महफूज रखे हम लोगों को। मेरा मकसद ये है कि हम नबी के चाहने मानने वाले हैं और नबी का जश्न, नबी की याद, नबी का जिक्र करने के लिए हमें कहीं और से नहीं, कुरान से ही हुक्म मिला है। मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत किया, अल्लाह ने उसमें इरशाद फरमाया है व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, और तुम्हें जो नेमतें अता की जाए उसका खूब खूब चर्चा करो। अब जाहिर सी बात है भाई, चर्चा करने के लिए माइक की जरूरत पड़ेगी ना, 10 लोगों 20 लोगों को इकट्ठा करने की जरूरत पड़ेगी। रूम में बंद होकर तो चर्चा नहीं होता है, रूम में बंद होकर तो फिर वो जो है कानाफूसी होती है। और अल्लाह ने हमें चर्चा करने का हुक्म दिया है, तो चर्चा करने के लिए खर्चा करना पड़ेगा। ट्यूबलाइट है, लोगों को बुलाना है, माइक लगाना है, तमाम चीजें हैं। बातें बहुत हैं, रातें खत्म हो जाएंगी, लेकिन मेरे आका का जिक्र तो ऐसा जिक्र है कि पूरी कायनात की लकड़ियों को तोड़कर कलम बना लिया जाए और पूरे समंदर के पानियों को रोशनाई बना दी जाए, तो भी प्यारे आका का जिक्र जो है वो खत्म नहीं होगा। बस मैं इतना ही अर्ज करूंगा कि प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नाम पे मर मिटने का जो जज्बा हमें सहाबा इकराम से मिलता है, उस जज्बे को अपने दिल से कभी निकलने नहीं देना है। बड़ा अफसोस होता है कि हमारे नौजवान भाई यहाँ से इंजीनियर बन के गल्फ जाते हैं, यहाँ से और भी बहुत सारा क्या क्या कोर्स है उसमें, इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन और क्या क्या बहुत सारा कुछ, मतलब कुल मिला के कि यहाँ से इंजीनियर बन के जाते हैं, वहां से मुफ्ती बन के चले आते हैं। बड़ा अफसोस होता है। अब यानी कि आपके बाप दादा परदादा सब जो है वो माज़अल्लाह शिर्क कर रहे थे, आप आके अपने भैया को अपने अब्बा को कहते हैं ये सब शिर्क है, ये सब बिदअत है, तो माज़अल्लाह आपके भैया को और अब्बा अगर शिर्क कर रहे हैं तो इससे पहले फिर तुम्हारे दादा भी शिर्क कर रहे थे। अगर तुम्हारे दादा शिर्क कर रहे थे तो शिर्क जिसने कर दिया उसका निकाह टूट गया। जब उसका निकाह टूट गया तो फिर उसका बच्चा जो पैदा हुआ वो रहा हलाली, तो फिर तुम शिर्क का फतवा लगाने से पहले अपने हलाली और हरामी होने पर सोचो जरा सा मेरे भाई, सोचने की जरूरत है। बड़ा अफसोस होता है मुझे कि कैसी कैसी बातें लोग करने लगे। सिर्फ ये 100 से 150 साल के अंदर का प्रोपगंडा है। हाँ, रहा सवाल ये कि आप में से कोई लोग ये भी कह सकते हैं कि भाई पहले तो इस तरीके का नहीं होता था कि जुलूस निकल रहा है और आज के दिन वो किया जा रहा, तो बहुत सारी चीजें हर दौर में रहा है, लेकिन उसका तरीका अलग अलग रहा है। तो फिर उस पर भी है तर्क है, तो फिर क्या कहते हैं वितर्क है, तो उसका भी है। तो भाई पहले तो मैरिज हॉल से शादी नहीं होती थी, अब आप काय कर रहे हैं, आप कीजिए मैदान में टेंट लगाइए, यही से कीजिए। आप क्यों कार मंगवा रहे हैं, आप 2 या 4 आदमी के साथ कहाँ से भेजिए, तुम हमको काय भेजते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं। जब आप दुनियावी लिहाज से डेवलप कर रहे हैं तो दीनी लिहाज से भी हाँ उसमें बचने का वहां पर जरूरत है कि जहां पर सराहत के साथ कुरान में ये हुक्म आ गया कि तुम्हें ये काम नहीं करना है, तो उस चीज से बचने की जरूरत है। लेकिन जिस काम से हमारे दिलों में, अब आप इतनी देर से बैठे हो, लोग कहते हैं कि शिर्क कर रहे हैं, बिदअत कर रहे हैं, आप इतनी देर से बैठे हैं, आपका ख्याल न दुनिया की तरफ गया, न दुकानदारी की तरफ गया, न अड़ोस पड़ोस की तरफ गया, न बीवी बच्चे की तरफ गया। किधर ध्यान है? तो ध्यान अल्लाह पर है, रसूलुल्लाह पर है, सहाबा और ताबईन पर है। तो ये कितनी अच्छी बात है कि आप इतनी देर के लिए दुनिया से दूर होकर अल्लाह और उसके रसूल के जिक्र में मशगूल है, और कोई से अगर फतवा लगा देता है तो कितने अफसोस की बात होती है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामी, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, और तुम्हें जो नेमतें अता की जाए उसका खूब खूब चर्चा करो। और इसके आगे कुरान में अल्लाह ने फरमाया है कि लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फीहिम रसूला। देखिए अल्लाह तबारक, पूरा कुरान आप ढूंढ लीजिएगा, पूरा कुरान। हजरत यहाँ पर आलिम साहब बैठे हैं माशाल्लाह, ये ऑलराउंडर है मौलाना रफीक साहब, नात इनसे पढ़वा लीजिए, तकरीर इनसे करवा लीजिए, तिलावत इनसे करवा लीजिए, सारा कुछ माशाल्लाह अल्लाह ने इनको इल्म से आरास्ता फरमाया है। आप इनसे पूछ सकते हैं, अल्लाह ने कुरान में कहीं भी एहसान नहीं जतलाया है। मतलब हमें जो पैदा फरमा दिया तो
हमें आंख दे दी, अब भाई आपसे कहा जाए कि 1 करोड़ रुपए ले लो और बदले में हमें एक आंख दे दो, दोनों भी नहीं देना, एक दे दो, कोई तैयार होगा? नहीं तैयार हो। तो अल्लाह ने कितनी बड़ी नेमत दिया। फिर हमें हाथ मिला है, हाथ कह दीजिए भाई चलो डोनेट कर दो दूसरा, बस एक हाथ से रहो, तो वो भी नहीं तैयार होगा कोई। तो पता चला कि ये भी बड़ी अनमोल चीज है। पैर दे दो, ये भी बड़ी अनमोल चीज है। किडनी है, किडनी बड़े खस्ते से खस्ता हालात लोग फाका कर लेते हैं, भूखे मर जाना पसंद करते हैं, किडनी किसी को डोनेट नहीं करना पसंद करते हैं। तो पता चला कि ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, बड़ी अहमियत की हामिल है। तो मेरे अजीजों, ये तमाम चीजें कॉस्टली से कॉस्टली, कीमती से कीमती चीजें अल्लाह ने दिया है हमें, जिसका हम खुद भी आप भी मतलब इसको हम तसव्वुर कर सकते हैं कि वाकईतन ये बड़ी कीमती चीज है। कई बार ऐसा होता है कि भाई मौलाना साहब कह रहे हैं तो मानना पड़ेगा, सही कहते हैं, गलत तो नहीं कहते, लेकिन ये बात जो हम कह रहे हैं ये आप खुद भी मान सकते हैं कि हाँ भाई आंख है तो बड़ी कीमती है, पैर है तो बहुत कीमती है, जबान है तो बहुत कीमती है। ये सब बेचने वाली चीजें नहीं है। तो मेरे अजीजों, इतनी कीमती चीजें अल्लाह ने देकर एहसान नहीं जतलाया। भाई होता है ना कि भाई अरे मैं ये चीज तो देखिए मेरे को बहुत पसंद है, लेकिन चलिए आपको दे दिया मैंने। तो फिर कहीं पर होता है कि लोग एहसान जतला देते हैं, अरे वो मांग रहे थे या उनको जरूरत थी, मैंने पूरा कर दिया। लेकिन अल्लाह ने किसी भी चीज पर, आप पूरा कुरान पढ़ डालेंगे, किसी भी चीज पर अल्लाह ने एहसान नहीं जतलाया, क्योंकि किसी चीज की इंपॉर्टेंस ही नहीं है अल्लाह की नजर में। और भाई वो अरबों खरबों अनकाउंटेबल इंसान पैदा कर चुका है, और इंसान को जो पैदा किया है तो वो अपनी बंदगी के लिए पैदा तो नहीं किया है। मतलब ऐसा नहीं है कि हम उसकी बंदगी नहीं करेंगे तो उसकी शान रबूबियत में कोई कमी हो जाएगी। हाँ, किसी भी ना किसी हर चीज के क्रिएशन का कोई ना कोई मकसद होता है। जैसे हमारे और आपके पैदा होने के लिए अल्लाह ने कुरान में एक मकसद बयान फरमा दिया, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। हमने जिन्नात और इंसान को अपनी इबादत के लिए पैदा फरमा दिया। वो एक चीज अल्लाह ने बता दिया कि आपकी क्रिएशन का मकसद क्या है, लेकिन हमारी और आपकी इबादत का माज़अल्लाह रब्बुल इज्जत मोहताज नहीं है। अरबों खरबों लातादार फरिश्ते दिन रात उसके आगे सजदे में पड़े हुए हैं, तस्बीह तहलील में पड़े हुए हैं, उसको इसकी जरूरत ही नहीं है। तो पता ये चला कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें इतनी नेमतों से नवाज कर भी कोई एहसान नहीं जतलाया, क्योंकि ये तमाम चीजें अल्लाह के नज़दीक अहमियत की हामिल नहीं थी। इंसान को जो चीज सबसे ज्यादा पसंद होती है, जब वो किसी को देता है तो उस पर वो एहसान जतलाता है या ये बताता है कि मैंने जो तुम्हें दी है वो मेरे नजदीक बड़ी कीमती चीज है, बड़ी अहमियत की हामिल चीज है। तो अल्लाह ने इसी तरीके से प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को हमारे दरमियान भेज कर, देखिए अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंपॉर्टेंस देखिए, इंपॉर्टेंस कितना है अल्लाह के नजदीक कि अल्लाह ने कुल कायनात बना दी, जमीन चांद सितारे आसमान हरियालियां खेतियां सारा कुछ दे दिया, कहीं कुछ एहसान नहीं जतलाया। एहसान जतलाया है तो कहाँ जतलाया? लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला। मैंने तुम्हारे ऊपर एहसान किया कि तुम्ही में से एक रसूल मबऊस फरमा दिया है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लाम, यह देखिए आज जो लोग नबी की ताज़ीम व तौक़ीर नहीं करते, नबी की इज्जत नहीं करते, नबी के नाम पर जान निसार करने का जज्बा नहीं रखते, वो इस आयत से सबक हासिल करें कि अल्लाह ने हमें क्या कुछ नहीं दिया लेकिन कहीं एहसान नहीं जतलाया। अपने महबूब को भेजा है तो एहसान जतलाया है। तो यहाँ से महबूब का इम्पोर्टेंस पता चलता है, महबूब की अहमियत पता चलती है, महबूब की मकबूलियत पता चलती है कि अल्लाह ने जब अपने महबूब को भेजा है तो एहसान जतला दिया है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, उसी महबूब की आंखों की जो ठंडक है वो नमाज है। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे आंखों की ठंडक नमाज है। इस पर मेरी गुफ्तगू अभी परसों ही नरसों हुई है, लिहाजा इस मौजू पर हम नहीं आएंगे, लेकिन हाँ इतना जरूर कहेंगे कि हम जिस तरीके से नबी की आमद का जश्न मनाते हैं, जलसे जुलूस करते हैं, साथ साथ नमाज का भी एहतमाम जरूर करें, क्योंकि बिना नमाज के कुछ भी नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उस उम्मती से मुंह फेर लेंगे जो बेनमाजी होगा। नबी को तकलीफ पहुंचती है जब उनका कोई उम्मती गुनाह करता है, नमाज छोड़ता है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तो हम नबी को खुशी पहुंचाने वाले हैं, नबी के चेहरे पे मुस्कान लाने वाले हैं, तो चेहरे पे मुस्कान नमाज की पाबंदी से आएगी। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, एक और डाउट है जो शक है नबी को लेकर। आम तरीके से शायद आप लोगों ने भी सुना होगा कि नबी माज़अल्लाह 40 साल के बाद नबी हुए। ऐसा आप लोगों ने कभी सुना होगा? अगर नहीं सुना है तो बहुत अच्छी बात है कि आप लोग अभी तक बचे हुए हैं ये सब बहकी बातों से। अल्लाह करे कि बचे ही रहे हमेशा और ईमान पर रहें और हम तमाम लोगों का ईमान ही पे खात्मा हो। तो कुछ लोग ये कहते हैं कि नबी को माज़अल्लाह 40 साल के बाद नबूवत मिली। उनसे
मत पूछिए, किसी और मुफ्ती साहब से मत पूछिए, आप चले आइए विलादत मुस्तफ़ा का वो मंजर देखिए कि प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मैं सिर्फ माँ की बात कर रहा हूँ, किसी मुफ्ती की बात नहीं कर रहा हूँ। माँ जो बोलेगी, माँ भी कोई आम माँ नहीं है, सिलेक्शन है उसका परवरदिगार की तरफ से। माँ फरमाती है, वालदा मोहतरमा फरमाती है, बीबी आमना फरमाती है कि जब मेरा लख्ते जिगर पैदा हुआ तो देखिए किस अनोखे अंदाज से पैदा हो रहा है। दुनिया में बच्चा आता है, अभी तो मैंने आपको माँ की कंडीशन बताई, माँ की प्रॉब्लम बताया। अब देखिए बच्चा जो आ रहा है, बच्चा भी हटके है सबसे, सिर्फ माँ ही हटके नहीं है, माँ के साथ अल्लाह ताला खुसूसी फर्ज नहीं फरमा रहा। जो बच्चा आ रहा है, प्यारे आका की आमद जो हो रही है वो किस शान के साथ हो रही है। आप मलबूस है यानी कपड़ा पहने हुए हैं, मख्तून है यानी खतरा किए हुए, खतरा शुदा है, आपकी आंखों में सुरमा लगा हुआ है, बाल जुल्फे जो है, जुल्फे मुबारक वो सबरी हुई है, कंघा किया हुआ है। मतलब ये कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपको एकदम सजा कर बना कर दुनिया में भेजा। और दुनिया में जब दुनिया में आते हैं बच्चे, तो आप सब लोग जो माशाअल्लाह अब्बा बनने का शर्फ हासिल है, सब माशाअल्लाह भाई लोग आगे में इधर हैं, इधर तो अभी बच्चे हैं। तो बच्चा रोता हुआ आता है। और यहाँ से पॉइंट ले लीजिएगा आप लोग, जो लोग कहते हैं 40 साल के बाद नबी हुए, जब बच्चा दुनिया में आता है तो वो रोता हुआ आता है। और प्यारे आका क्या फरमाते हुए आ रहे हैं, आप आते ही सजदे में चले जाते हैं। और जब आपके लबे मुबारका को देखा गया कि हिल रहा है, जुम्बिश कर रहा है, तो कान लगाया गया। जब कान लगाया गया तो ये सुनने में आया कि रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। अब बताओ भैया कि रब्बे हबली उम्मती कहने वाला कोई आम इंसान होगा? अरे उम्मत तो उसी की होती है जो नबी होता है, जो नबी नहीं तो फिर उम्मत कहां से? तो पता ये चला कि प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पैदा होते ही नबी नहीं है, बल्कि जब टाइम नहीं था, वक्त नहीं था, तब से नबी है। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जो वजूद है, शजर व हजर से पहले मेरे आका का वजूद, बर्गो समर से पहले मेरे आका का वजूद, चांद सूरज से पहले मेरे आका का वजूद, दरिया की तरियानी से पहले मेरे आका का वजूद, मौजों की रवानी से पहले मेरे आका का वजूद, कुल कायनात से पहले मेरे आका का वजूद है। तो कैसे है? खुद अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे महबूब इरशाद फरमाते हैं, अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी व कुल्लु खलाइकुम मिन नूरी। अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहले अपने नूर से मेरे नूर को बनाया, उसके बाद मेरे नूर से तमाम कायनात को बनाया। जमीन और आसमान और चांद और सूरज सितारे सब कुछ जितनी भी तखलीक हुई वो अल्लाह के प्यारे महबूब के नूर से हुई। और ये वही नूर है जो पेशानी आदम में आया, ये वही नूर है जो पेशानी नूह में आया, ये वही नूर है जो पेशानी इब्राहिम में आया, ये वही नूर है जो पेशानी दीगर अंबिया में आया, ये वही नूर है जो पेशानी इस्माइल में आया, ये वही नूर है जो पेशानी अब्दुल्लाह में आया, ये वही नूर है जिसका ज़हूर 12 रबीउल अव्वल में हुआ है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इस नूर की कद्र मंजिलत को जानने की जरूरत है। आज बहुत सारे लोग गुमराह करने के लिए, उल्टी पलटी बातें बताने के लिए बैठे हुए हैं, लेकिन हमारी और आपकी अहम जिम्मेदारी है कि जिस तरीके से हम पानी को पीने से पहले एक बार देखते हैं क्लियर है कि नहीं है, साफ सुथरा है कि नहीं है, उसी तरीके से किसी की बात सुनने से पहले भी उसको जांचें और परखें कि इसकी बात ऐसा तो नहीं कि हमारे अकीदे को मजबूर कर देगी, हमारे अकीदे को खराब कर देगी। जिस तरीके से खाने से पहले हम ये देखते हैं कि ये खाने वाली चीजें हमारे बॉडी के लिए साइड इफेक्ट पैदा कर सकती है, हमारे बॉडी के लिए मुज़िर साबित हो सकती है, हमारे बॉडी के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है। उसी तरीके से हमें इल्म वालों से भी मिलना है, तो ऐसे इल्म वाले से मिलना है जो हमारे अकीदे को खुशगवार बना दे, जो हमारे अकीदे को मदीने के ताजदार से मिला दे, जो हमारे अकीदे को मदीने के ताजदार से दूर कर दे। वैसे लोगों से हमें दूरी बना लेने की जरूरत है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, चंद बातें थी जो कुरान और हदीस की रोशनी में मैंने आपके सामने पेश किया। अल्लाह से दुआ है कि वो हमें और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए और प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नाम पे मर मिटने का जज्बा अता फरमाए और आपकी प्यारे प्यारे सुन्नतों पे अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। आप तमाम लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। और ये हमारा और आपका कमाल भी नहीं है कि हमने ये महफिलें सजाई, बिलाशुबा अल्लाह ऐसे लोगों का इंतखाब फरमाता है कि ये फला बिन फला, फला बिन फला, फला बिन फला, ये मेरे रसूल की आमद का जश्न मनाएंगे।
बाकी लोगों के लिए तो सुम्मुन बुकुमुन उम्युन फहुम ला यरजिऊन हो ही गया है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तो ये हमारी और आपकी मुश्तरका तौर पर खुशनसीबी है कि अल्लाह ने हमें और आपको अपने महबूब का जश्न मनाने के लिए सिलेक्शन फरमा लिया है। जिस तरीके से हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के साथ जाने के लिए कई मलाइका मुक़र्रबीन तैयार थे, मुझे भी जाने की इजाजत मिले दरे नबूवत पर, मुझे भी जाने की इजाजत मिले काशाने नबूवत पर, लेकिन इजाजत उनमें से चुनिंदा फरिश्तों को मिली, सारे फरिश्तों को नहीं मिली, चुनिंदा फरिश्तों को मिली। तो अल्लाह ने हमें और आपको चुन लिया कि उसके महबूब का जिक्र करें। अल्लाह से दुआ है कि हमारी और आपकी हाजिरी को कबूल फरमाए, और जिन लोगों ने इस बज़्म को सजाने रचाने बसाने में तन से मन से धन से हिस्सा लिया है, आप तमाम लोगों की हिस्सा लेने को कबूल फरमाए और दुनियावी उखरवी दोनों जहान की भलाइयां अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। उम्मीद है कि अब सलाम पढ़ लिया जाए। सलातो सलाम पेश खिदमत है। मुस्तफा जाने रहमान पे लाखों सलाम, मुस्तफा जाने रहमान पे लाखों सलाम। शम्मे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, शम्मे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। जिस सोहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, जिस सोहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, उस दिल अफरोज साथ पे लाखों सलाम, उस दिल अफरोज साथ पे लाखों सलाम। शबे असरा शबे असरा के दूल्हा पे दाम दुरूद, शबे असरा के दूल्हा पे दाम दुरूद। नौशे बज़्म जन्नत पे लाखों सलाम, नौशे बज़्म जन्नत पे लाखों सलाम। जिसने बाग़े दो आलम को महका दिया, जिसने बाग़े दो
علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ یا رسول اللہ آپ کا تشریف لانا وقت بھی کتنا سہانا جگمگا اٹھا زمانہ جگمگا اٹھا زمانہ پورے گاتے تھے ترانہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ السلام علیکہ یا سید يا شيخين كريمين الصلاة والسلام عليك يا أهل البقية الصلاة والسلام عليك يا أهل المعلى الصلاة والسلام عليك يا مشكل القشاة الصلاة والسلام عليك يا أهل الكربلاء الصلاة والسلام عليك يا غوث الورى الصلاة والسلام عليك يا أهل الله وعلى آلك وصحابك وأزواجك يا نبي الله صلى الله تعالى عليه وسلم الله يا رحمن يا رحيم الہ العالمین پاک پروردگار بندہ نواز مولا کریم آج کی اس مقدس شب میں بعد نماز عشاء سے لے کر اب تک جو تیرے محبوب و محبوبان بارگاہ کا ذکر ہوا محفل میلاد منعقد ہوئی مولا کریم اس میں جو بھی نعت و مناقب و تقاریر ہوئی ہیں مولا درود و سلام پڑھا گیا ہے جو مہد رشیدنی پانی موجود ہے الہ العالمین اس میں جس قسم کی بھی لغزشیں خطائیں کوتاہیاں ہوئی ہوں تو رحمان و رحیم اپنی رحمت سے معاف فرما اور اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما اس کا ثواب اپنی شان رحیمی و کریمی کے مطابق آقا نامدار مدنی تاجدار احمد مجتبی محمد مصطفیٰ روح فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری پیاری بارگاہ بکس پناہ نظر ملا قبول و مقبول فرما آپ کے اسرے سے آپ کے فرش تمام انبیاء کرام علیہ السلام تمام امہات المؤمنین تمام اہل بیت اطہار تمام صحابہ کرام تمام صحابیات تمام تابعین تابعین ائمہ مجتہدین حضرات خلفاء راشدین المہدیین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی بارگاہ میں تمام قبول و مقبول فرما حضور پیر لاسانی شہباز علامتانی قطب ربانی پیر پیرا میر میرا پیران پیر دستگیر سیدنا شیخ محی الدین عبدالقادر جیلانی حسنی حسینی بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ وجمعی سلسلہ دربار قادریہ کی بارگاہ میں تمام قبول و مقبول فرما خواجہ خواجگان فخر ہندوستان خواجہ معین الدین حسن چشتی اجمیری سنجیری رحمت اللہ علیہ وجمعی سلسلہ دربار چشت کی بارگاہ میں تمام قبول و مقبول فرما سلسلہ عالیہ قادریہ چشتیہ نقشبندیہ سہروردیہ کی جملہ اولیاء کرام جملہ اولیاء سہسران کی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما مولا کریم ہم تمام حاضرین کے خانوادے سے جو لوگ رخصت ہو چکے ہیں تمام مرحومین کے روح فتوح کو نظر مولا قبول و مقبول فرما کل مسلمین والمسلمات الاحیاء منکم والاموات کی روح کو نظر مولا قبول و مقبول فرما مولا کریم آج کا یہ مبارک دن مقدس دن معظم دن معتبر دن مولا کریم تیرے محبوب کی آمد کا دن ہے مولا کریم وہ دن ہے جس دن تو نے اپنی رحمتوں کو عام فرما دیا ہے مولا کریم یہ وہ دن ہے جس دن کے صدقے میں پورے سال تو نے جن گھروں میں اولاد ہوئی بیٹا ہی بیٹا عنایت فرمایا ہے مولا کریم یہ وہ مقدس دن ہے جس دن کے صدقے میں پورے سال تو نے جس درخت میں جو پھل نمودار ہوتے تھے پورے سال وہ پھل آتے رہے ہیں مولا کریم یہ دن وہ دن ہے جس دن تو نے بلا تفریق مذہب و ملت تو نے اپنی رحمتیں عام فرمایا ہے مولا کریم اسی دن کے صدقے میں
ہم تیرے عاجز و ناکارہ بندے ہیں، گنہگار و سیاکار و خطاکار بندے ہیں، تیری بارگاہ میں طلب رکھنے کی بھی کوئی عمل نہیں رکھتے ہیں، تیری بارگاہ میں طلب کی ضرورت نہیں رکھتے ہیں۔ مولا کریم تو ہمارے گناہوں کو نہ دیکھ، بلکہ اس دن کے صدقے میں ہمارے حال زار پہ کرم فرما، دنیا میں اخروی دونوں جہان کی بھلائیاں عطا فرما۔ مولا کریم ہم گناہگار ہیں، سیاکار ہیں، خطاکار ہیں، لیکن تیرے محبوب کے چاہنے ماننے والے ہیں۔ مولا کریم تیرا یہ فضل ہے، تیری یہ عطا ہے کہ تو نے اپنے فضل و عطا سے ہمارے دلوں کو اپنے نبی کی محبت جاگزی فرما دی ہے، ہمارے دلوں میں اپنے محبوب کی محبت جاگزی فرما دی ہے۔ تیرا شکر ہے، تیرا احسان ہے کہ تیرے نبی کے نام لیواؤں میں تو نے ہمارا شمار فرما دیا ہے۔ مولا کریم آج اسی نبی رحمت کی آمد کا دن ہے، مولا کریم آج اسی نبی رحمت کی آمد کا دن ہے جو نبی شفیع المذنبین ہے۔ مولا کریم ہم غریبوں کے غم گسار ہے، مولا کریم ہم فقیروں کی حالت کے پیشوا ہیں اور ہمارے داتا ہیں۔ مولا کریم اس نبی رحمت کے صدقے میں ہمارے پھیلے ہوئے ہاتھوں کو گوہر مراد سے پر فرما۔ مولا کریم تو کریم ہے، کرم فرما دے، مولا تو رحیم ہے، رحم فرما۔ مولا کریم جس نبی کی آمد کے صدقے میں تو نے کل کائنات کو بنایا ہے، ہمیں بنایا ہے، مولا کریم ہمیں ایسا بنا دے کہ تجھے پسند آ جائے۔ مولا کریم ہمارا ہر بڑھتا ہوا قدم تیری رضا کے لیے ہو، تیرے دین کی بہبودی و بقا کے لیے ہو، اہل سنت والجماعت کے فروغ کے لیے ہو۔ مولا کریم تو ہم سے سدا کے لیے راضی ہو جا، الہ العالمین ایسا راضی ہو کبھی ناراض نہ ہونا۔ مولا کریم ہمارا ہر بڑھتا ہوا قدم تیری رضا کے لیے ہو۔ مولا کریم تو ہمیں ایسی ہدایت عطا فرما جس کے بعد کوئی گمراہی نہ ہو۔ مولا کریم تو ہمیں ایسی توبہ عطا فرما جس کے بعد کوئی گناہ نہ ہو۔ مولا کریم تو ہمیں ایسی عزت عطا فرما جس کے بعد کوئی ذلت و خواری نہ ہو۔ مولا کریم ہم تیرے عاجز و ناکارہ بندے ہیں، گنہگار و سیاکار و خطاکار بندے ہیں، تیری بارگاہ میں شفیع المذنبین کا وسیلہ لے کر آئے ہیں، تیری بارگاہ میں مشکل کشا علی کا وسیلہ لے کر آئے ہیں۔ حضور مشکل کشا علی کے صدقے میں مشکل کشائی فرما دے۔ مولا کریم ملک میں امن و امان عطا فرما دے، آپس میں اتفاق و اتحاد عطا فرما دے، عالمی وبا کورونا وائرس کا مکمل خاتمہ عطا فرما دے، عالمی وبا کورونا وائرس کا مکمل خاتمہ عطا فرما دے، عالمی وبا کورونا وائرس کا مکمل خاتمہ عطا فرما دے۔ مولا کریم ہمیں نیک بننے کی توفیق عطا فرما دے۔ مولا کریم تیرے محبوب کا جشن منانے کا خوب شوق و جذبہ عنایت فرما دے، تیرے محبوب کے نام پہ مر مٹنے کا شوق و جذبہ عنایت فرما دے۔ مولا کریم تیرے محبوب کی میلاد کی خوشی میں جن لوگوں نے بھی اس محفل کو آراستہ کیا ہے، سجایا ہے، سنوارا ہے، مولا کریم تن سے من سے دھن سے حصہ لیا ہے، مولا کریم تو ان کے حصہ لینے کو قبول فرما۔ تیرے محبوب کی بارگاہ میں ان لوگوں نے جو خراج عقیدت پیش کیا ہے، اس خراج عقیدت کو شرف قبولیت عطا فرما دے۔ مولا کریم اس کی برکت سے ان کے جان و مال، عزت و آبرو، روزگار و تندرستی میں خیر و برکت عطا فرما دے، ایمان میں پختگی عطا فرما دے، عقیدے کی اصلاح فرما دے۔ مولا کریم عقیدے پہ اہل سنت والجماعت کے عقیدے پہ قائم رہنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہم ثبت قدمی علی صراط مستقیم، اللہم ثبت قدمی علی صراط مستقیم، اللہم ثبت قدمی علی صراط مستقیم۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ اپنی تمام جائز حاجات کو رب کی بارگاہ میں عرض کریں۔ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائے رد شہید کربلا کے واسطے، کربلائے رد شہید کربلا کے واسطے، کربلائے رد شہید کربلا کے واسطے، سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ ہمیں، علم حق دے باقر علم خدا کے واسطے، قادری کر قادری رکھ قادری میں اٹھا قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے، احسن اللہ لہ رزقا سے رزق حسن بندے رزاق تاج الاسفل
اصفیاء کے واسطے دو جہاں کی نعمتوں سے ہم سب کو مالا مال کر، دو جہاں کی نعمتوں سے ہم سب کو مالا مال کر، حضرت شاہ جمع و عبدال پیا کے واسطے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین۔ جب دمے واپسی ہو یا اللہ رب ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم۔